Yes, once again, good morning. See, today we are going to pick up the last chapter of our first book, that is controlling. When we see controlling is the last function of management, but it is very, very important function. You can't ignore it from the list of your management functions, right? What actually controlling is, and where it stands in management process. When I make this circle of management process, I do start with planning. After planning, we just fix the duties and responsibility, and that was O, that is organizing. And after organizing, we just appoint the persons whereby we have the vacant positions with us, that was staffing. And after the staff is being appointed, they need certain instructions, they need motivation, etc. So this is D, that is directing. After the direction have been given to them, we can't let them free. We just have to keep a check over them. We just ask them again and again, are you able to finish the target or not? So that is what controlling. So under controlling, we just compare their actual performance with the standard set in planning. Both are the interrelated function. Means one is blind if the other function is not available. Without planning, controlling is blind. Why? Because under planning, objectives are being set, and under controlling, we just have to compare that set standards with the actual performance. हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, लाइक मारुति उद्योग के हम एग्जांपल लेते हैं कि 5000 गाड़ियां एक पर्टिकुलर मॉडल की बननी है, और साल के एंड में कंट्रोलिंग में we will check कि what they actually have produced. 5000 was your target, and at the end of the year we just find 4200 cars बनी है एक पर्टिकुलर मॉडल की. So there is a difference of 800, and negative difference है भाई. हम चाहते थे कि 5000 कार्स मैन्युफैक्चर हों, लेकिन आपकी सिर्फ 4200 ही हुई. So there is a gap of 800 cars. Why? Had you been not been controlling it, then how can you come to know कि हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया है कि नहीं? So whenever you compare your set standards with the actual performance, you just find the difference, and that difference we will always be calling deviations. Means you deviated from your standard set. Sometimes this deviation will be positive and sometimes it can be negative. Like in my present example, it is negative, right? Because our standard was more than the actual performance. Means there is a gap of 800 units. बट उलट भी तो हो सकता है. आपने बोला है कि 5000 कार्स बननी चाहिए, लेकिन कितनी बनी है? 5002. So this is what we call positive deviation. So whenever positive deviation is there, need not to worry, क्योंकि आपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया. लेकिन मान लो आप 5000 का टारगेट लेके बैठे हैं और गाड़ियां बनी है 5100, 100 गाड़ियां ज्यादा. हो सकता है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ, इतनी ज्यादा डेविएशंस नहीं है. या हो सकता है आपने स्टैंडर्ड ही लेस फिक्स किया हो, जबकि आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, आपके एम्प्लॉइज इतने ज्यादा एफिशिएंट हैं कि 5000 वाज वेरी लेस टारगेट फॉर देम. यू शुड फिक्स अ हाई टारगेट. सो दिस ओनली यू कैन कम टू नो व्हेन यू कंपेयर एट द लास्ट. आप प्लानिंग के साथ, उस सेट स्टैंडर्ड्स के साथ, क्योंकि प्लानिंग में सबसे मेजर स्टेप क्या है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, and whether you are able to achieve that objectives or not, that is very, very important to check. And this checking is being done under what? Controlling. I can relate it with your academic system. Like if I'm teaching you and I'm covering the syllabus and I'm not conducting, your school is not conducting your this PT1 and PT2 and then pre-boards etc. How can we come to know about your performance? ठीक है, अगर किसी की प्री बोर्ड 1 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वी डू कंडक्ट द सेकंड प्री बोर्ड सो दैट दे कैन इंप्रूव. इट मींस कि परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सर्टेन टेस्ट शुड बी देयर in academic system. Same is the case with what? Controlling. So under controlling, whenever you find negative deviations, you need to take the corrective steps, remedial steps, so that same mistakes or errors should not be repeated in the coming years. एक साल गलती हो गई, हमसे कोई खामी रह गई, कोई शॉर्ट कमिंग रह गई, वही डेफिशिएंसीज और शॉर्ट कमिंग्स अगले सालों में रिपीट ना हो. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, कंट्रोलिंग हमें ये भी सिखाती है दैट टेक रेमेडियल स्टेप्स एट एन एप्रोप्रिएट टाइम. टाइम रहते हुए आप करेक्टिव स्टेप्स टेक ओवर करो, ताकि वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो. अगर गलतियां रिपीट पे रिपीट होती जाती हैं, हमारा टाइम वेस्ट, हमारी मनी वेस्ट, हमारे सारे रिसोर्सेज वेस्ट. बट वी ऑल हैव scarcity of resources. How can we let them waste? So in order to avoid that circumstances, we always say that controlling should be there. ठीक है. और एक बात, controlling is always looking backward and planning is always looking forward. और रिवर्स भी है. पहले तो जो मैंने लाइन बोली वो जरा देखो. Planning is looking forward and controlling is looking backward, because planning is always meant for future
ठीक है, एंड फ्यूचर इज येट टू कम ना, तो फॉरवर्ड है ना, आगे देखती है ना प्लानिंग। और कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड क्या है, वट एवर यू हैव अचीव दैट वी आर गोइंग टू चेक। सो इट इज द पोस्टमार्टम ऑफ द इवेंट्स और द ट्रांजेक्शंस अकर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जो काम हो चुका है उसकी चेकिंग करना ही तो क्या है, कंट्रोलिंग है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट लुकिंग बैकवर्ड। लेकिन रिवर्स भी है, कंट्रोलिंग लुकिंग फॉरवर्ड भी है। हाउ? बिकॉज अंडर कंट्रोलिंग वी जस्ट फाइंड द डेफिशिएंसीज एंड वी जस्ट pursue that these deficiencies should not be repeated in the coming future. It means कि ये backward के साथ साथ looking forward भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप चाहते हैं ये गलतियां दोबारा ना हो। For that you take remedial steps. Getting it? और planning अगर looking forward है तो looking backward भी है, because while setting the objectives under planning you see the past trends, कि past में हमारे objective क्या थे, उस past को base बना के you just set the target for the coming year. So in that way they are both looking forward as well as looking backward. ठीक है, और हमारे सिलेबस में पहले ये टॉपिक हुआ करता था कंट्रोलिंग और प्लानिंग का relationship between planning and controlling. Now from this session it has been deleted. तो हम लोगों को वो नहीं करना, सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन चैप्टर जहां पे उसने स्टार्ट किया, he took an example of a courier company. ठीक है, अब कुरियर कंपनी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो लोग भी पार्सल्स और डॉक्यूमेंट्स या कोई भी मटेरियल भेजते हैं उन चीजों को आपको टाइम पे उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। लेकिन इस कंपनी के साथ क्या हुआ, दिस कंपनी टुक द हेल्प ऑफ एन एयरलाइन, और उस एयरलाइंस की गलती के कारण इनका सामान इनके कस्टमर्स और क्लाइंट्स तक देरी से पहुंचता था। अब कंपनी के सीईओ ने क्या डिसाइड किया कि लोग दे आर गेटिंग एनॉयड विद द कंपनी की सर्विसेज डे बाय डे पुअर होती जा रही हैं। तो सीईओ ने क्या डिसाइड किया कि हम कस्टमर्स को कंपनसेट करेंगे, ठीक है, चाहे मेरे को इस क्वार्टर में लॉस ही क्यों ना झेलना पड़े। इट मींस कि टाइम रहते हुए कंपनी ने करेक्टिव मेजर लिया, अपने फेलियर को ट्रांसफर नहीं होने दिया कस्टमर तक। सो यू हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस। और ये कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा, व्हेन यू सी and when you check your actual performance. Means daily you are getting the email from the customer sides, and customers they are facing so much financial loss, they are ready to sue against you. तो इससे पहले कि वो केस करते, कंपनी के सीईओ ने यही डिसाइड कर लिया कि जितना जितना नुकसान मेरे कस्टमर्स को हुआ है उन कस्टमर्स को मैं कंपनसेशन दूंगा। और आने वाले टाइम में उन्होंने अपनी एयरलाइन ही क्या कर ली, चेंज कर ली, जो उनको फास्ट सर्विस क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज द वे, टाइम रहते हुए यू आर बीइंग रिकमेंडेड टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। एंड व्हेनेवर ही विल बी टॉकिंग इन द केस स्टडी अबाउट द रेमेडियल मेजर्स, अबाउट द corrective measures, about the actual performance, about the standard sets, then you have to identify that function is of controlling. So these are the key points. जब कभी भी वो एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेगा, डेविएशंस की बात करेगा, रेमेडियल मेजर्स की बात करेगा, तो आपने कौन सा उसे फंक्शन बोलना है, कंट्रोल। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था, केस स्टडी उसने कैसे परफॉर्म करी थी। ही फ्रेम्ड द केस स्टडी लाइक द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी decided to install CCTVs at workplace so that they can keep a check over the performance of each and every employee. By installing that CCTV cameras, which function the management performed? That is what? Controlling, to keep a direct check. उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंट्रोल रखना, ताकि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करे, ताकि उनके मन में डर रहे, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सीसीटीवी इंस्टॉल करना भी हमारा कौन सा फंक्शन होगा, दैट इज व्हाट, कंट्रोलिंग, बिकॉज मैनेजमेंट डजंट वांट टू कम आउट फ्रॉम इट्स कैबिन अगेन एंड अगेन। तो स्क्रीन उसके ऑफिस में लगी है, एम्प्लॉइज को भी डर है, दे विल बी बीइंग कैप्चर्ड बाय दैट कैमरास। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम कंपनीज मैनेजमेंट थॉट टू कीप अ चेक ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, ताकि हमारा और कंपनी का टाइम वेस्ट ना हो। सो नाउ कम टू द मीनिंग। Before meaning, I have a definition of Kuntens or Donnell, how he is defining, these both persons are defining. Managerial control implies the measurement of actual या accomplishments. What you accomplished, पहले उसे measure करो, means measurement of actual performance. Against what? Against the standard set. And where you set the standards? Planning. Planning में जो आपने standard set किए थे, उसके against आपने क्या accomplish किया है, दोनों की measurement करो। एंड करेक्शन ऑफ द डेविएशंस, डेविएशंस कब करेक्ट करोगे, जब नेगेटिव हो। अगर डेविएशंस पॉजिटिव है, नीड नॉट टू वरी, आपकी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा है, ठीक है।
तो डेविएशन जब कभी भी यू फाइंड, और जब कभी भी आपको डेविएशन फाइंड करनी है, यू नीड टू कंपेयर, आपको अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस और किसको, प्लांट परफॉर्मेंस को या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को आपस में क्या करना है, कंपेयर. What is the meaning of standard performance? That is the target set under or objective set under planning. What is the actual performance? You will be keeping a record from the different departmental heads. You will be asking them कि आप अपने एम्प्लॉइज की रिपोर्ट हमें सबमिट करवाओ, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी. Then you will be judging कि हमारा टारगेट कहाँ तक अचीव हुआ है. Then you will be finding the deviations. And after finding out the deviations to ensure attainment of objectives according to plans, आपको इस बात की श्योरिटी बना के रखनी है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही अचीव हों जैसे हम लोगों ने प्लानिंग में क्या करे थे, सेट करे थे. सो दिस सीम्स टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन डिफाइनिंग द कंट्रोलिंग इन अ एप्रोप्रिएट मैनर. कंट्रोलिंग मीन्स, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स हैं. इन अदर वर्ड्स, कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per plans. आप इस बात की श्योरिटी और गारंटी लेते हो कि जैसा हम लोगों ने प्लानिंग में फिक्स किया है सारी एक्टिविटीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो. सो दैट इज व्हाट वी कॉल कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग आल्सो इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली. वो आपके मटेरियल है, वो आपके मैन है, वो आपकी मनी है. तीनों तरह के रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो मींस वेस्टेज कम से कम हो. और वेस्टेज के ऊपर चेक रखने के लिए यू हैव टू कीप अ चेक ओवर देम. आपको अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या रखना है, चेक रखना है. उनके मन में एक तरह का फेयर होना चाहिए. यस, एनी टाइम वी कैन बी चेक्ड, एनी टाइम वी आर सीक्रेटली बीइंग कैप्चर्ड बाय द सीसीटीवी कैमरास, और हमारा जो सुपरवाइजर है वो हमारी रिपोर्ट हमारे सीनियर्स को देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू आर जस्ट इंश्योरिंग that objectives are being achieved well on time, effectively as well as efficiently with minimization of wastage of the resources. लास्ट पैराग्राफ देखिए, मैंने पहली लाइन लिखी थी, दिस इज लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस पैराग्राफ में वो क्या लिख रहा है, कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई? क्योंकि कंट्रोलिंग विल गाइड द नेक्स्ट ईयर प्लानिंग. ठीक है, तो ये मत समझना कि कंट्रोलिंग कर लिए तो खत्म हो गए फंक्शन. नो, कंट्रोलिंग में जो भी लूप होल्स मिले, जो भी डेफिशिएंसीज मिली, वो अगले साल की प्लानिंग में हमारी हेल्प करेंगी, और अगले साल की प्लानिंग हम इन डेविएशंस को माइंड में रखते हुए करेंगे. इट मींस कि नेक्स्ट ईयर प्लानिंग विल बी डन आफ्टर कंट्रोलिंग ओनली. लास्ट ईयर की कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ही आप अगले साल की क्या करोगे, प्लानिंग. सो इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन. तो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी परफॉर्मेंस के बाद या जिसको परफॉर्म करने के बाद आपके फंक्शंस दे नेवर कम टू एन हॉल्ट, वो बंद नहीं हो जाते. ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी हेल्प करता है अगले साल की प्लानिंग करने के लिए. दैट्स इट. फिर मैंने बता ही दिया, कंट्रोलिंग में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, फिर उसको सेट स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हो. दैट्स इट. देन वी हैव इन द आवर सिलेबस, मीनिंग के बाद है हमारा इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों ने कर ली है. इट हेल्प्स to keep a check over the achievement of the goals. It helps to ensure optimum utilization of resources. It helps to bring efficiency and effectiveness in the organization, etc., etc. ठीक है, to find out the deviations, to helpful in the next year planning. अगले साल की प्लानिंग करने के लिए हमारी इस साल की कंट्रोलिंग क्या करती है, हमारी हेल्प करती है. So first point, what he is making, it helps in the achievement of organizational goals. Will you agree? अगर कंट्रोलिंग है तभी तो एम्प्लॉयज के मन में डर है, उनको पता है कि एंड में हमारी परफॉर्मेंस की क्या होनी है, चेकिंग होनी है. सो कंट्रोलिंग नहीं है तो गोल्स कभी भी टाइम पे अचीव नहीं होंगे. हम उन्हें टाइम लिमिट देते हैं ना, इतने टाइम में आपने गोल्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं, देन वी विल चेक. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट चेकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के कारण हमारे एम्प्लॉयज में एक तरह का फेयर रहता है, सो दे विल बी परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज विद प्रॉपर डेडिकेशन एंड डिवोशंस. हाँ यस, अगला, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. अभी मैंने जो मारुति वाली एग्जांपल दी थी, लाइक योर सेट स्टैंडर्ड वाज 5000 कार्स, राइट, एंड यू मैन्युफैक्चर्ड एक्चुअली 4200 कार्स. इन दैट केस यू विल कम टू नो कि आपने स्टैंडर्ड ज्यादा फिक्स किया. दैट्स व्हाई ही मेड अ पॉइंट जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. तो जब कभी भी आपकी नेगेटिव डेविएशंस बहुत ज्यादा होंगी, उसका मतलब क्या होगा, आपने स्टैंडर्ड जरूरत से ज्यादा हाई फिक्स कर दिया था, आपके पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके एम्प्लॉयज भी इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ 800 कार्स, 800 यूनिट्स आपके क्या बने हैं, कम बने. मान लो अगर
आपका टारगेट है 5000 कार्स बनाना एंड योर एम्प्लॉइज दे आर मेकिंग 5200 कार्स इन अ ईयर, इट मींस कि अगेन योर स्टैंडर्ड्स वर लो. You haven't analyzed the efficiency and effectiveness of your employees well. आपने सही ढंग से उनकी efficiency को जज ही नहीं किया. They are capable to produce more, लेकिन आपने उनके लिए target less fix किया. So whenever deviations are positive, whenever the deviations are negative, it means in both the cases your targets were not properly being set or appropriation was not there while setting the standards. And that only you can come to know with the help of controlling. कंट्रोलिंग की हेल्प से आपको पता चलेगा आपके स्टैंडर्ड्स बहुत कम बार होगा कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया वही अचीव हो, टिच वही हो. लाइक अगर आपने 5000 यूनिट्स बोला है तो वो 5000 ही अचीव करे, बहुत कम बार होगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फेस डेविएशंस. हाँ, एक दो यूनिट की डेविएशंस है, वी कैन इग्नोर. लाइक 5000 यूनिट्स बोला तो बन गए 5002, फाइन, नीड नॉट टू वरी. आपने 5000 यूनिट्स बोला, बन गए 49,098, सॉरी 4998. 2 यूनिट्स का हेरफेर होना इज एडमिसिबल, वी कैन इग्नोर इट, राइट. तो नीड नॉट टू वरी इन दैट केस. इतना हेरफेर हो सकता है, इतने थाउजेंड्स की मैं बात करूं और 2 यूनिट कम बन जाए या ज्यादा बन जाए, नीड नॉट टू वरी. बट व्हेनेवर देयर इज अ ह्यूज गैप, यू विल कम टू नो कि स्टैंडर्ड्स वर नॉट एप्रोप्रिएटली सेट. ठीक है, सो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस. अगला भी मैंने बता दिया है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. यू आर कीपिंग अ चेक. You will never let your employees waste the time, material, because you are keeping a check over them. You are asking for a quarterly fortnightly report from the departmental heads. Weekly report आप मंगवा रहे हैं, 15 दिनों के बाद आप रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, तो उनके मन में एक तरह का क्या रहेगा, डर रहेगा. वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे. और जब आपने उनकी वर्क प्लेस पे सीसीटीवी भी लगा दिए हैं, तो ईच एंड एवरी मिनट ऑफ देयर वर्क प्लेस इज बीइंग कैप्चर्ड. You are keeping a check over them. आप जरूरी नहीं है कि सारी रिकॉर्डिंग देखते हैं, सब कुछ विटनेस करते हैं, पर उनके मन में तो एक डर है ना. ठीक है, so they will never be sitting for gossip and they will not be sitting idle, etc. So in that case, you are ensuring the optimum utilization of resources. Yes. Improving employee motivation. What is the meaning of employee motivation? They feel motivated, they feel inspired. How? पढ़ते हैं. A good control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised. Like आप लोगों को as a students बताया गया है, जो प्री बोर्ड को क्लियर करेंगे उन्हें ही रोल नंबर मिलेंगे. जब तक पेपर क्लियर नहीं करेंगे, एंड वाले दिन तक भी रोल नंबर नहीं स्कूल अलॉट करेगा. ठीक है, so in that case what is that? You are well aware about the policy of the organization, about the policy of your school. So same is going to happen with our employees because we told them. आपकी प्रमोशन तभी होगी अगर आप ये टारगेट अचीव करोगे. अगर आपके अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव पॉइंट हो गया, आपकी प्रमोशन को डिले कर दिया जाएगा. इट मींस कि दे नो हाउ देयर परफॉर्मेंस इज टू बी अप्रेज्ड. ठीक है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा अप टू डेट रखेंगे. दे फील मोटिवेटेड. हाउ दे विल फील मोटिवेटेड? दे विल बी ऑलवेज स्ट्रेसिंग ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स, ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द वर्क व्हाट इज बीइंग असाइन्ड टू देम. तो जो काम उन्हें दिया जाएगा वो उस काम को हमेशा डेडिकेशन के कारण, मतलब सेल्फ मोटिवेशन हो गई ना. आपको बता दिया गया दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज अ टाइम लिमिट. ठीक है, विद इन दिस टाइम फ्रेमवर्क यू आर टू कंप्लीट दिस टारगेट. इट मींस कि दे विल बी फीलिंग सेल्फ मोटिवेटेड. उन्हें बार बार आपसे पूछने की जरूरत नहीं है और साथ में बोल दिया गया ये काम पूरा कर लोगे तेरी प्रमोशन श्योर है. So that is a source of self motivation to them and that is going to happen only with the help of what? Controlling. क्योंकि controlling में उन्हें बोल दिया गया ये स्टैंडर्ड है और तेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर होगी. अगर कोई भी डेविएशन नहीं पाई जाएगी तो तेरे को प्रमोशन मिल जाएगी. Then next, ensuring order and discipline. What is the meaning of order? Principle of order. Who will tell? फ्यूल का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. व्हाट इट मींस? दो चीजें, दोनों ही, एक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है. हाउ विल यू डिफाइन? यस, हु विल टेल? बोलो. हु विल टेल? कोई भी चीज क्या नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी. हर बंदा अपना काम क्या करेगा, सही ढंग से करेगा. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होगा. कोई भी चीज इधर उधर बिखरी नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया है कि आपको ये काम ऐसे ही करना है. देन डिसिप्लिन, दे विल बी
asked to follow all the rules and regulations. If they will not be following, then penalties can be levied. Their salary of 1 day can be deducted. ठीक है, लाइक यूनिफॉर्म में आना है, अगर यूनिफॉर्म मैनेजमेंट ने बना के दी है एम्प्लॉइज को, आई कार्ड पहन के रखना है, अगर कोई आई कार्ड के बिना एंट्री लेता है तो उसकी हाफ डे की सैलरी डिडक्ट होगी. लाइक दैट वे दे विल बी फोर्स्ड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग इट. और क्यों वो ऐसा करेंगे? Why they will follow the rules and regulation? Why the discipline can be ensured? Because they know under controlling their performance can any time be checked. Surprisingly their performance can be checked. ठीक है, अगर कोई डिफॉल्टर पाया गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. व्हाट इट मींस? कंट्रोलिंग में जब आपको टारगेट दे दिए, फिर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो आपने ग्रुप में रह के काम करना है, तभी तो टारगेट अचीव होगा. और टारगेट एक ग्रुप को दिया गया, इंडिविजुअल को थोड़ी ना. डिपार्टमेंटल हेड प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि तूने इतनी गाड़ियां बनानी है, कैन ही हिमसेल्फ मैन्युफैक्चर? नो, ही हैज अ टीम इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 100 सबऑर्डिनेट्स हैं उसके अंडर. तो वो सारी टीम मिलके काम करे, क्योंकि एवरीबॉडी इज द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. ठीक है, तो इट विल help to reduce the conflicts and everybody will be helping each other. So this is what we call coordination can be ensured in action. As every coin has two sides, head and tail, same is with what controlling. अगर controlling के कुछ advantages या importance है या significance है, तो इसकी limitations भी है. How come? Controlling से ना एक तरह का stress रहता है. ठीक है, जब CCTV कैमरास हर जगह लगा दिए हैं, it means कि they are not free to move. They always feel snubbed. उनकी फ्रीडम और ऑटोनॉमी क्या हो जाती है? क्वेश्चन मार्क हो जाती है. they will not be feeling like satisfied with the job. उनको लगता है कि हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर चेक रखा गया है. तो समटाइम्स यू कैन मेक देम फ्री ना. मींस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं है आपकी कंपनी में, तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस रहती हैं हमारी कंट्रोलिंग की. लेट्स स्टार्ट विद यस. जब मैंने बोला कि कंट्रोलिंग में यू हैव टू कंपेयर द स्टैंडर्ड सेट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस. But sometimes what happen, few standards are not able to set in quantitative terms. Means कई goals को हम qualitative terms में तो measure कर सकते हैं, लेकिन quantitative terms में हम measure नहीं कर सकते. जैसे honesty of my employees, dedication of my employees, can I give them a ranking? मैं इन्हें money में measure कर सकती हूँ? These are their personal क्या बोलते हैं traits. ठीक है, these are their personal qualities. Though honesty, punctuality, regularity are very very important on the parts of employees and for the success of the organization as well. But sometimes what happens, we are not able to give them quantitative measurement. So it becomes a problem. जब आप कई स्टैंडर्ड्स को क्वांटिटी वाइज या न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते, फिर एक्चुअली जब परफॉर्मेंस होगी तो उसको कंपेयर भी कैसे करोगे? सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एग्जांपल देखना उसने जो लिखा है. कंट्रोल सिस्टम लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कांट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. इट मेक्स द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स अ डिफिकल्ट टास्क. मैंने भी एग्जांपल दी. कहता कई बार कई टास्क ऐसी होती हैं, कई ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनको आप क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दी, एम्प्लॉइज मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन बिहेवियर आर सच एरियाज वेयर दिस प्रॉब्लम माइट अराइज. दो दीज आर एसेंशियल. माय एम्प्लॉइज दे विल ऑलवेज बी boosted up, their morale should always be high, their job satisfaction should always be high, but we can't rank them, we can't measure them numerically. मेरे किसी एम्प्लॉय का मोरल का लेवल कितना है, आई कैन जस्ट से लो और हाई, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कितने डिग्री है, कितनी उसकी मेजरमेंट है. मैं कभी भी इसे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती. दो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड दीज नीड टू बी इंश्योर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए आपके एम्प्लॉइज की जॉब सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज दे विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. आपको दोबारा से नए बंदे अपॉइंट करने पड़ेंगे, दोबारा से उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. यू नीड टू स्पेंड अ लॉट. ठीक है, सो इन दैट केस इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. मतलब इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, यू कांट कंट्रोल दैम. ठीक, क्योंकि इनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर ही नहीं कर सकते. हाँ, जो कंट्रोलिंग है ना वो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है. जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं आप सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर सकते हो. अब मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस करवाई हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस करवाई हैं. हु विल टेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस
कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं जिनके ऊपर चाह के भी आप कंट्रोल नहीं रख पाते हो. So that becomes a limitation of your controlling. मेरे वाली एग्जांपल थी. You don't have the control over the economic policy of your country, government policy, political conditions. आपका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता, जो कंट्रोलिंग का हमारा ड्रॉबैक बन सकता है. आप सिर्फ अपनी कंपनी को एज अ होल कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड your company, what is going to happen? You have only little control over that. Resistance from employees. ये देखो, यहीं से केस स्टडी बनाई. जब आपने वर्क प्लेस के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, they will be thinking that their freedom is being question mark, their autonomy is being question mark. They will be coming forward for protest against management policy. तो कई बार जब आप कंट्रोल जरूरत से ज्यादा टाइट करने की कोशिश करते हो, तो मैनेजमेंट को रेसिस्ट करते हैं हमारे एम्प्लॉइज. दे कैन कम फॉरवर्ड फॉर स्ट्राइक्स, दे कैन कम फॉरवर्ड फॉर प्रोटेस्ट. ठीक है, तो ये हमारी कंट्रोलिंग की क्या बन जाती है? लिमिटेशन बन जाती है. कॉस्टली अफेयर, अभी बोला, हर टाइम आपने पहले स्टैंडर्ड फिक्स करे, फिर उन स्टैंडर्ड को डिक्टेट कर दिया अपने एम्प्लॉइज को, फिर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर कंपैरिजन किया. कॉस्टली टाइम वाइज भी है. ठीक है, टाइम वाइज कैसे? आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कंपैरिजन और डेविएशंस कैलकुलेट करने के लिए. और कॉस्टली कैसे है? लाइक in order to keep a control over your employees, you install CCTV cameras. तो CCTV cameras के ऊपर you have to spend money ना. तो इस तरह से आपका टाइम ज्यादा लगता है इसमें, और आपका क्या है? पैसा भी ज्यादा लगता है. Whatever he has written, I am going to read. Let's see. Control is a costly affair as it involves a lot of expenditure. बोल दिया ना, time and effort. आपका एफर्ट भी लगता है, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है. अगर मैं एग्जांपल लूं एक स्मॉल प्रोप्राइटर की, सोल प्रोप्राइटर की, he can't have this control system, क्योंकि इतना पैसा इतना टाइम उसके पास थोड़ा नहीं. He is the only man, one man who is running and controlling his business. He is managing his business. तो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इतना सारा पैसा लगाना पॉसिबल नहीं होता. So this control system is basically meant for large scale companies, and if I elaborate it, so it is meant only for public limited companies. जहां पे हजारों की गिनती में लोग काम करते हैं, तो वहां पे कंट्रोल रखना असेंशियल भी हो जाता है. और ऐसी कंपनीज के पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो दे कैन इजीली कीप अ कंट्रोल ओवर देयर एम्प्लॉइज. Managers must ensure that the cost of installing and operating a control system should not exceed the benefit derived from it. So you need to compare the benefits and cost. आपको कंट्रोलिंग पे जितना खर्चा किया है, उसके इक्विवेलेंट और उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने चाहिए. मींस आपने अगर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं, तो क्या एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस पहले से इंप्रूव हुई है कि नहीं? सीसीटीवी कैमरा से पहले आपका स्टैंडर्ड कभी भी अचीव नहीं होता था, बट नाउ यू आर अचीविंग द टारगेट वेल ऑन टाइम, इवन समटाइम्स बिफोर टाइम. मींस एक डर नाम की चीज एम्प्लॉइज में हो गई है. दे नेवर वेस्ट द टाइम. सो यू ऑलवेज नीड टू कंपेयर द बेनिफिट एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन योर कंट्रोल सिस्टम. So this becomes a limitation. आमतौर पे क्या रहता है? ये कॉस्टली अफेयर रहता है. रिलेशनशिप हमारे सिलेबस से डिलीट है, टेक्निक्स पहले से ही डिलीट हो चुकी हैं, प्रोसेस मैंने करवाना बस. यस, एक दिन और. लेट मी टेक योर अटेंडेंस नाउ. रिया सिद्धू, आप कितने दिनों के बाद क्लास में आए हैं? अदरवाइज आई वाज नॉट विलिंग टू एडमिट यू इन माय क्लास. दिस इज अमन नहीं है, अमन के भी आज में फोन करते हैं. अमरिंदर है, अमृतपाल पहले पीरियड में आया था, अभी नहीं. अमृतपाल, अनिकेत है, अनुराग है, अनुराग के बाद अपारदीप नहीं है, अपूर्वा नहीं है, अर्शिता नहीं है, आर्यन नहीं है, भावना है, भाविनी नहीं, भाविका भी नहीं, भावनी भी नहीं, चहल है, चहल के बाद दीक्षा है, दिवांशु है, दिव्या, भावनी है.